It's yours. Yeah, it's mine. How old? 2 years. I have 18 dogs. 18 dogs. My goodness. Where are you from? I'm from Leh. Oh, you are from Leh only? Yeah. Okay, great. I'm with my troops, the bikers. With the bikers. So, So all the 18 dogs are stray dogs, except one. yeah. Good, very good. I've been working with NGOs for the animal rescues. No, if you are in a good cause, no, Yeah. God is always with you. Build the tourism industry forever. Basically, they are trying to destroy the beauty of Ladakh. They're all about money. All about Because money. Yeah, it's all. Ladakh is full of uranium, Yeah, full of marbles, yeah, granite, and so many resources that we have. They want to take all of it, and they're saying like we're making roads everywhere. Yeah. It's a development. Actually, they're just making a way for the big trucks to go Yeah, in the mountains, yeah, and yeah, then they can yeah. take everything. And they're giving us a railway station while we are a population of just 2 lakh people. Yeah. And very like small resources that we have. We don't grow anything that can be supplied to other part of India. So why do we need railways? The point is that if the resident doesn't want any development, or maybe it's a so-called development, maybe if the residents doesn't want, if they are happy with whatever they have right now, then what? Forcefully they are giving us. Yeah, forcefully they are giving. You take it. No, it's not about take it. It's about the policy of those big mafia, business mafias. So if we can't get this 6th schedule and the safeguard for Ladakh, Yeah. within 5 years, Ladakh will be totally different. To be honest, okay. We know the local people because they already started in some part, like where you doesn't need a road. There's like if that road access is for some village, that is something else. But that road goes to no village. It just goes in between the mountains Okay. where you can dig out, do mining. Yeah. So that's why people of Ladakh, people of Himachal, they are on this yatra. Nice to meet you. Same here, man. Same here. One more thing for you. It's just a gestures for a good people. It's like kuch meetha, or good people like you for doing good causes and all. Thank you. Hey, good morning. आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हो वाइट पीक पे लद्दाख का सुहाना सफ़र। तो आज है 21 सितंबर 2024 और हम हैं फ़िलहाल जिस्पा पे। हम इस होटल में ठहरे थे। ये है कोई बाघा रिवर व्यू होटल एंड रेस्टोरेंट। स्टे ठीक था, बट ठीक जो था वो था फूडिंग, मतलब बहुत लाजवाब फूड था। एक रीजनेबल स्टे चाहते हो तो आप यहाँ रह सकते हो बाघा रिवर व्यू पे। एक तो स्टे ठीक ठाक है एंड फूड बहुत बढ़िया है। तो मैं तो रेडी हो चुका हूँ और बाकी 2 अभी तक आए नहीं है। और ये है मेरी कार, मैंने कोल्ड स्टार्ट करके रखा है। अभी देखते हैं अभी इन लोग कितने बजे निकलते हैं। अभी उसके बाद फिर हम लोग निकलेंगे लेह के लिए। फ़िलहाल टाइम हो रहा है 7:15 और यहाँ से जिस्पा लेह दिखा रहा है लगभग 10:30 घंटे के करीब। अच्छा, बेटर है या पेंगोंग? जब पेंगोंग सोमोरी रोड बनाते हैं और पेंगोंग के दोनों का ब्यूटी अलग होगा थोड़ा, आई गेस। सेम है, एक ही जगह जाओ, दोनों जाने का हमको भूल के दोनों जगह जाके। पेंगोंग से सोमोरी जगह वो है, रोड बड़ा प्यारा, बस ये है रोड आपको एकदम ऐसे लगेगा कल ही डाला हुआ। पर इसका ध्यान रखना, पेट्रोल नहीं मिलेगा आपको रास्ते। ओके जी, वी हैव स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम जिस्पा स्ट्रेट टू लेह। अभी बजे सुबह के पता नहीं कितने बजे पहुंचेंगे। अगर आप जिस्पा से लेह के लिए निकलते हो तो ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा कि आप सुबह जितनी जल्दी हो सके जिस्पा से लेह के लिए निकल जाए। अब हम निकले सुबह 8 बजे, तो क्या आज हम लेह पहुंच पाएंगे या नहीं, जानने के लिए बने रहिए अंत तक हमारे साथ। पता नहीं कि नींद ही नहीं आ रही थी। शायद EMS भी हो सकता है। हाँ, मैं वही सोचा था शायद EMS हो। मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दिमाग में तो नींद है, बिल्कुल टायर्ड हो चुका हूँ मैं। सोचा सो पाऊंगा। बिल्कुल भी नींद नहीं हुई। नहीं आया नींद, बट पता नहीं कितने बजे सोया मैं। मतलब 12 बजे तक तो मैं करवट ले रहा। ब्रिज देख के पहली बार इतनी खुशी हो रही है। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर लग रहा है। हाँ, बहुत सुंदर लग रहा है ये ब्रिज।
ये है पूरे हिमाचल प्रदेश का सबसे लंबा ब्रिज जो स्थित है मनाली लेह हाईवे में लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट दारचा गांव में, जिसके नीचे से बह रही है भागा रिवर और जिसकी लंबाई है 360 मीटर और इसे बनाया गया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। ले जाना है उस्ताद, ले जाना है जी। हाँ जी, इस साइड झंस्कार शिंकुला लेफ्ट और राइट साइड को है ले। पहला वाटर क्रॉसिंग है हमारा। मेरा इंस्टा की बैटरी ख़त्म हो गई तो मोबाइल से शूट कर रहा हूँ। आई डोंट नो, व्यू वाइड नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हम हैं अभी दीपक ताल पे। ये है दीपक ताल, एक छोटा सा लेक है, बहुत सुंदर है। बिल्कुल पानी मस्त है यार, क्या मस्त पानी है, एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये हमारी ब्लू बर्ड, बहुत ही छोटा सा है बट बहुत ही खूबसूरत सा लेक है। खास करके जो पानी है ना बिल्कुल ग्रीन कलर का है और एकदम क्रिस्टल क्लियर है पानी। ये कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। एक छोटा सा ढाबा टाइप है, अगर आपको चाय हुए पीना हो तो यहाँ पे आप पी सकते हो, बट आई गेस अभी ये बंद है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है। तो हम निकलेंगे अभी दीपक ताल से बारालाचा की ओर। चले बाबा। अच्छा, भौंकना सुन के ये लोग भी आ गए हो। अच्छा कुछ गाड़ी के पीछे आ रहे हैं। ओए नो बाबा, वाह क्या दौड़ लगाया उसने, दौड़ ही रहा। चला गया। बिल्कुल बंजर पहाड़ है एकदम। ये कोई चेक पॉइंट है। अच्छा, मेडिकल की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। कोई आर्मी कैंप है। ये बीच बीच में जो लाल लाल सा घास टाइप है ये बहुत सुंदर दिख रहा है। रेड, ग्रीन एंड येलो का कॉम्बिनेशन है, ऑरेंज भी है। ये लो जी, बच्चे को दे देना। आप लोग हो तो हम लोग सफ़र कर पा रहे हैं। थैंक यू। अब आया थोड़ा सा पथरीला रोड। ये खराब रास्ता और कितना दूर है भैया? अच्छा, सामने ही, ज़्यादा नहीं है। हेलो। पत्थर ही पत्थर है बिल्कुल। अब है जी बिल्कुल खड़ी चराई। सरचू अभी भी 52 किलोमीटर यहाँ से। 52 ही होता है ना? नहीं, 92। लद्दाख की खूबसूरती सही मायनों पर एक अलग ही प्रकृति की कलाकारी है, जिसे हर मोड़ पर अलग अलग रंगों से रंगा गया है। इस सफ़र के दौरान मानो मैं एक अलग ही दुनिया में सफ़र कर रहा हूँ। हमें यहाँ रोक दिया गया है क्योंकि कह रहे हैं आगे जाम है। तो जिंगजिंग बार पीछे है, हम जिंगजिंग बार से आगे आ चुके हैं। जिंगजिंग बार से पहले जो चढ़ाई थी वो काफ़ी खड़ी चढ़ाई थी एंड मेरे इग्निस ने बहुत अच्छा काम किया। मतलब
बहुत अच्छे से चढ़ गया वो। फ्रेश बर्फ दिख रही है ऊपर चोटी पे, शायद गिरा होगा हाल ही में। कोई नहीं, उसको और मानो दर्शन करें। वो लोग कैसे गए होंगे यहाँ से? साइकिल से कर रहे हैं, फॉरेनर्स हैं, इनका जोश अलग ही होता है। ये थोड़ा ट्रैवलिंग को अलग ही तरीके हाँ, अलग ही तरीके से लेते हैं। और हर साल इन लोग ट्रैवलिंग पे निकलेगा ही, तो महीने काम करेंगे, पैसे इकट्ठे करेंगे, बस निकल जाएंगे लोग। अभी जो थोड़ा सा ऑफ पैच है, एक लेक भी है छोटा सा, खूबसूरत छोटा सा लेक है हमारी दाई और कौन सा लेक है ये, सूरज ताल है भी या नहीं पता नहीं, बट रास्ता बहुत ख़राब है आगे। हाँ जी, ये सूरज ताल ही है, टॉर्किश कलर का पानी है। तो ये है जी सूरज ताल पे अभी हम फ़िलहाल, बट हम यहाँ रुक नहीं रहे हैं। सुंदर है वैसे, बट वी डोंट हैव मच टाइम, तो हम सीधा अभी बारालाचा के निकलेंगे। तो जी हम निकल पड़े अभी सूरज ताल से बारालाचा की ओर। तो हम हैं अभी 4850 मीटर ऊपर बारालाचा पास में। हमारे ऑगी के साथ, हल्क के साथ हम सेफली पहुंच गए बारालाचा पास। हल्क नहीं पहुंचाया सबको है ना। तो ये है एग्जैक्टली बारालाचा पास का व्यू। इग्निस अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आई एम प्राउड ऑफ माई इग्निस। इसने अरुणाचल में भी अच्छा परफॉर्म किया था, अभी तक फिलहाल यहाँ भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, आपने अरुणाचल वाला सीरीज़ नहीं देखा यार? क्या कर रहे हो, जाओ यार देख लो जाके, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख लेना अरुणाचल वाला सीरीज़। बहुत मज़े किए, बहुत खतरनाक रोडों से गुजरा है हम लोग, मैं और ऑगी थे तब भी। तो ऐसा कुछ है बारालाचा, बारालाचा ला तो पास ही होता है। बिल्कुल पथरीले पहाड़ है, सारे पत्थर से भरे हुए पहाड़, लूज पत्थर है सारे। सांस की मुझे कुछ ऐसी दिक्कत तो नहीं आ रही है, हालांकि मैं सुबह डाइमॉक्स ले लिया था एक प्रिकॉशनरी के लिए ना। एंड हाँ, कल रात को मुझे जिस्पा पे काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, रात को नींद मुझे नहीं आई थी अच्छे से। सुबह हम लोग तकरीबन 8 बजे निकले थे जिस्पा से और अभी टाइम हो रहा है 10, आपको दिख नहीं रहा होगा, 10:30 बजे। लगभग 2.5 घंटे लग गए जिस्पा टू बारालाचा पास पहुंचने में। हम निकल गए अभी बारालाचा से। अब आगे कहीं पे नाश्ता वगैरह करेंगे। हम लोग कुछ नाश्ता किया नहीं है जिस्पा में। तुम लोगों ने खाया कुछ था? नहीं। मैं बस भी चॉकलेट खा के। कभी किया था ऐसा कोई स्ट्रेंजर के साथ ट्रैवल? नहीं। पहली बार? हाँ। मेरा भी पहली बार, मैं सोचा ट्राई कर लेते एक बार। अभी तक तो मैं सोलो ही करता था, फिर देखा फेसबुक ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लोग ऐड देते, जैसे राहुल ने भी दे रखा था। अब पुलिस में ना एक एडवांटेज हुआ है कि नहीं, मतलब जेन्युइन है। थोड़ा सा मतलब मेरा नेचर वैसा नहीं है कि ना कि मैं झट से किसी से घुल मिल जाऊँ, और लोगों का होता है अच्छा नेचर होता है। मेरा ये टीम मेरिट है, मैं हर किसी के साथ घुल मिल नहीं सकता एंड हर किसी के साथ दोस्ती भी नहीं होता मेरा, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। मैंने इसलिए ना सोचा कि चलो देखते हैं इस बार कैसा होता है मेरा नेचर में। मैं एक खुद को ट्राई दिया, स्ट्रेंजर के साथ कैसा होता है एक्सपीरियंस। थोड़ा एक्सप्लोर करना चाहिए वैसे ना। हाँ, जब तक कुछ करेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा ना। वैसे ही डर डर के रहते कि पता नहीं क्या, हाँ हाँ। कैसे है। एक्चुअली ये
क्या है ना कि 4x2 है ना, तो हर जगह सोचना पड़ता है जाने के लिए। जांच कर तो शायद मैं अगली बार के लिए करूं, कुछ ना कुछ तो छूटना चाहिए अगली बार के लिए, ताकि दोबारा आने का हाँ दोबारा आने का मौका है। कैसे हो भैया? ये लोग पता नहीं कैसे रहते हैं यहाँ पे। क्या करें, मजबूरी है, पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है लोगों को, फिर भी हम लोग कोसते हैं खुद को कभी कभार। मतलब है ना, इंसान है हम लोग, इतनी अच्छी ज़िंदगी मिलने के बाद भी हाँ संतुष्ट नहीं है। अब इन लोगों को ही देख लो, इतना मशक्क़त भरी ज़िंदगी है, फ्लैटों में रह रहे, एसी में रह रहे, आराम से 10 to 5 जॉब कर रहे, फिर भी छूट ही जा रहा है कुछ ना कुछ। ज़िंदगी से सेटिस्फेक्शन मिल जाए ना तो समझो मोक्ष मिल गया। वो चीज़ मिलना ही मुश्किल है कि बस हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए। भाग दौड़ की दुनिया में लगे हुए हैं, ये चाहिए वो चाहिए, कुछ मिल गया तो इसके बाद और चाहिए, वो मिल गया तो फिर उसके बाद और चाहिए। इसलिए कभी कभार मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के मॉन्क बन जाओ। अब तो आपकी फैमिली है। हाँ वही तो, मोह माया की दुनिया में तो फंसे हुए लोग। वेस्ट बंगाल से आए बाइक। अच्छा बंगाली होंगे शायद, हो सकता यार मुझे बंगाली बाइकर से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। अरुणाचल में मुझे साथ नहीं दिया इन लोगों ने, हाँ मतलब इतना ज़्यादा डरपोक है इन लोग। ब्लैक आइस अभी उंगली में ब्लैक आइस रिस्की हो जाता है, आइस तक ठीक है। बारालाचा के नीचे एक दो छोटे छोटे से ढाबा है काइंड ऑफ, तो वहीं पे यहाँ स्टे भी कर सकते हैं यार। अच्छा यहाँ तो स्टे का भी ऑप्शन है आई गेस। अब बंगाल से हो? कहाँ से हो? बीरभूम। बंगाली हो इसका मतलब? मैं भी बंगाली हूँ। बारालाचा से नीचे आप आओगे तो यहाँ कुछ देर नीचे उतरने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे ढाबाज मिल जाएंगे आपको, अगर आपको कुछ नाश्ता पानी करना हो तो। बट आगे थोड़ा सा आगे हम लोग रुके थे, वहाँ पे सिर्फ 2 चाय पॉइंट था, बट वहाँ पे कुछ खास था नहीं, तो हम लोग और थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टाइम हो रहा है अभी 11:30। वो ऐसे घूम रहा है, कुछ करेगा नहीं कुछ। कैसा लग रहा है ट्रिप? क्या नाम है भैया? ऑगी रॉकी? नहीं ऑगी। ऑगी? ऑगी तो डरा रहा है मेरे को। तो जी हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ब्रेकफास्ट के काइंड ऑफ लंच हो गया हमारा। अब टाइम हो रहा है 12:05 और अभी हम है न्यू भरतपुर में। पेट्रोल मेरा है अभी फ़िलहाल रेंज दिखा रहा है 388, 2 डंडी 3 डंडी नीचे आ गई, और माइलेज है 18.8। अब आगे कोई पेट्रोल पंप तो है नहीं, अगर ले तक पहुंच पाते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर ब्लैक में लेना पड़ा तो ब्लैक में लेना पड़ जाएगा फिर। अजीब ही पहाड़ है यहाँ पे, डरावना सा है ना। सैंड थोड़ा अलग है। हाँ रेड ब्राउन मतलब अजीब सा ही है। पहले से थोड़ा लैंडस्केप चेंज हुआ है हल्का सा। पांग 100। ऑक्सीजन की कमी इसीलिए होती है ना, पेड़ पौधे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, बंजर है। शायद ये पेड़ पौधे लगाओ भी तो नहीं होंगे आई गेस। लद्दाख में जैसे जो आर्मी वाले हैं ना, वो लोग ने लगाया हाँ पेड़ वगैरह लगाए, तो लोकल्स वहाँ लड़ने लग गए थे। क्यों? कि क्लाइमेट चेंज हो गया ना वहाँ का, पेड़ लगाने बाद में। हाँ मतलब बारिश से फ्लड वगैरह होगा ये सब। पता नहीं, यहाँ पे हमें नेटवर्क मिल गया था अभी, तो कुछ देर रुक के स्टोरीज वगैरह अपडेट कर दिया। अगर आप मुझे इंस्टा में फॉलो नहीं करते, ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप जाके प्लीज़ इंस्टा में फॉलो कर लो। सारे स्टोरीज एंड फोटोग्राफ्स में अभी पे अपडेट करता हूँ। यहाँ लग गया जी जैम, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है सारा यहाँ पे, ट्रक्स वगैरह पास हो रहे हैं तो इकट्ठे पास नहीं हो सकते, रुक रुक के चलना पड़ रहा है। अभी साइड से निकालना पड़ेगा। तो बहुत बड़े बड़े पत्थर है। सब ग्राउंड क्लियरेंस कितना? 180, बस थोड़ा दूर और।
एक गाड़ी एक टाइम पे जा सकती है। मुझे पानी देख के तो मन कर रहा है वहाँ जाके नहा लूँ। तो गर्मी भी लग रही है, बहुत ठंडा होगा, है ना? फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, पांग अभी भी 95, ले 269, टांगलांगला 161। यहाँ मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की बट ड्रोन ने जवाब दे दिया। बहुत ज़बरदस्त हवा है ना बाहर, विंड बहुत ज़्यादा है, वो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा ड्रोन। और अभी फ़िलहाल ड्राइवर स्विच हो चुकी है, शी इज़ ड्राइविंग नाउ। को ड्राइवर सीट पे मैं बहुत कम रहता हूँ, बहुत कम के रहता ही नहीं हूँ। ये सरचू है लगभग 10 किलोमीटर। किया इन्होंने पूरा गिर गया क्या नीचे एकदम? पूरे खून खून हो रखा है तो बिल्कुल। स्कीट कर गया क्या या फिर? यहाँ से मैं फोन चला रहा था तो बाइक पता नहीं कब साइड में आ गई, उसके बाद ये लाइट टूट गई, ये विंडशील्ड भी टूट गया। ये पहले एक ब्रेक लेना, क्योंकि आपने पेन किलर खाया ना, आपको नींद आ गई, ठीक है? तो पहले रिलैक्स हो जाना 2-3 घंटे के लिए, उसके बाद ड्राइव करना, ठीक है? हाई एल्टीट्यूड अब स्टार्ट होगा ना ज़्यादा होगा। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू जी। ओके जी। अरे ये पूरा छिल गया हुआ, जैकेट खुली हुई थी, मतलब ऑफ रोड हो गए थे तुम, रोड से नीचे आ गया था। वीडियो ऐसे बना रहा था, हाँ तो मैं थोड़ा ऐसे देखा, बाइक ऐसे हो गई, इससे टकरा गई बाइक। उसके बाद यहाँ से फिर मैंने थोड़ा हैंडल ऐसे, ये पिलर पे टकराई। हाँ? ये पिलर पे टकराई। रोड भी तो ऐसे ही है ना, बिल्कुल साफ सीधी रोड है, ग्लव्स पहना होता तो ये लगती नहीं। लगती नहीं। हाँ ये ठीक है ना, ये वहाँ पे अटक गया था ना सीट पे। अच्छा हाँ, ना ये गिरा ही नहीं। फाइन आई गेस। ओके थैंक यू सो मच। थैंक गॉड यहाँ पे ना लोग थे, इतने सारे लोग हैं ना, सारे लोगों ने इनको हेल्प किया, राहुल को, उनको बैंडेज वगैरह करवाया और पेन किलर्स वगैरह दिए इनको, थैंक्स टू देम। और ये रोड है ना बम्पी है बिल्कुल, ऐसे चल रही थी गाड़ी भी, ऐसे चल रही थी, थोड़ा सा बम्पी रोड है। ऐसे कुछ फील हो रहा है, दर्द वगैरह हो रहा है क्या? कुछ थोड़ा सा मतलब डेटोल का जलन हो रही है। यहाँ पे पेन किलर तो कल सुबह पता चला। इम्पैक्ट तो जोर का था गया, सारे वो जो बैग साइड बैग्स वो भी छिल गए पूरा। ये साइकिल वाले थे ना? अरे बाप रे, ये तो गाड़ी से भी आगे चले आए। तेज जा रहे हैं। दोनों साइड लगेज है तो वो वही पे, हाँ सारा इम्पैक्ट जो बैग में आया। गाड़ी से तो ज़्यादा रिस्क बाइक में है, इसलिए बाइक में और ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। ट्रैवल करना है तो कभी कभार हो जाता है ऐसा, पर ये चीज़ थोड़ा वैसा है ना, खुद के वजह से हुआ है। हाँ लापरवाही नहीं बरतना चाहिए, ये कुछ चीज़ है। ऐसा नहीं है कि कोई ये एक्सीडेंट तो लापरवाही की वजह से हुआ। ये शायद सरचू है आई गेस। ये आर्मी कैंप। हम हैं अभी सरचू में एंड जाम में फंसे हुए यहाँ पे। बाइक जाएगा उधर से, गाड़ी इधर से जाएगा। हाँ मेरे बेटे ने बहुत देखा है ना वो चीज, वो के अंदर कॉकरोच है, उस वजह से ये नाम पड़ा है उसको। ओए नो, ये दिल्ली का कुत्ता कैसा भौंक रहा है? हिमाचल में कुत्ते नहीं भौंकते भाई। हिमाचल के नहीं भौंकते? भौंकते वो कुछ नहीं, ये दिल्ली का है ना, एटीट्यूड में रहते हैं। चंट है। ये देखो इसको बेमतलब भौंके जा रहा है। क्यों भौंक रहा भाई तू? तमीज सीख, यहाँ के कुत्ते भौंक रहे, देखा तूने भौंकते हो किसी को? कुछ नहीं बोल रहे हो, दिल्ली के ही रहोगे। पतली सी है ना ब्रिज, तो 2 गाड़ी नहीं निकल सकती। निकल जाएगी ना यहाँ से? बिल्कुल भाई, वो तो ठीक है। ब्रिज ना गिर जाए। ऐसे निकल तो जाएगी हमारी गाड़ी तो आराम से। चल निकल जाएगा।
ये छोटा पत्थर तो कुछ नहीं, रुको रुको मैं हटाता हूँ बड़ा पत्थर। नीचे वाला तो डरावना लग रहा था ब्रिज। शॉर्टकट में काम हो गया। ये ब्रिज तो ठीक ही है, तो फिर रोक क्यों रखा है इन लोगों ने? शायद अभी है, अभी नीचे है पानी। हाँ, इतना नहीं है। पांग 76 अभी भी। जहाँ भी दूर तक नजर पड़ रही है एकदम एक जैसा बंजर पहाड़। सिर्फ नाम बदल रहा है, बाकी सब एक जैसा सेम है। अभी भी 20 का माइलेज दिखा रहा है, 20.2। ट्विंग ट्विंग ब्रिज। ट्विंग ट्विंग ब्रिज एकदम स्मूथ मक्खन रोड है। चला के इतना मज़ा आ रहा है। ब्लू स्काई और उसके पास पहाड़ का अलग ही कॉम्बिनेशन आ रहा है। इतना ज़्यादा ब्लू है स्काई, कैमरे में तो और ज़्यादा उभर के आती है। हाँ। बिल्कुल ब्लू। मुझे ऐसा लग रहा है कोई अलग ही कंट्री में आ गए। कोई अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ऐसा कुछ जगह में आ गए हम लोग। ये नाम भी अजीब है, देखो विस्की ब्रिज। ये वही है शायद, नहीं वही है क्या? कौन सा वाला? जिसमें वो पानी देते हैं। नहीं शायद ये नहीं है, गाटा लूप से वो तो शायद, जिसमें एक मिथ है कि यहाँ पे कोई ट्रक ड्राइवर वो पानी की वजह से मर गया था, तो सारे जाते जाते उसको पानी देते हैं। सर वो उसका बनाया है वहाँ पे। अच्छा मूर्ति टाइप। ओके। तो फिर वहाँ पे देते, गाटा लूप्स में है शायद। गाटा लूप। ये तो है गाटा लूप्स। शुरू हो गया। यहाँ खराब है। बिल्कुल पानी ब्लू, स्काई ब्लू। लद्दाख इज अ सिटी ऑफ ब्लू सिटी कहना चाहिए लद्दाख को। जैसे राजस्थान जयपुर में पिंक सिटी और लद्दाख को ब्लू सिटी। तो सब कुछ इतना ज़्यादा ब्लू है, पानी, स्काई, बहुत ज़बरदस्त। हम हैं अभी फेमस गाटा लूप्स में, जो कि हेयरपिन बैंड रोड है। काफ़ी चढ़ाई पे है एंड काइंड ऑफ हेयरपिन बैंड टाइप ऑफ रोड है यहाँ पे। वो दिख रहे ट्रक आते हुए आपको बिल्कुल ऊपर, वहाँ चढ़ना है हमें। वैसे जिगजैग करके। तब जितना ज़्यादा पेट्रोल हमने ऐसे नहीं खर्चा, वो गाटा लूप्स में खर्चा हो रहा है, ऐसा लग रहा है। आ गया जो हम बता रही थी। अच्छा, यहाँ पे है वो सारे, देखो प्लास्टिक, इतने सारे प्लास्टिक बॉटल्स। यहाँ का रीत है, तो लोग यहाँ से जब भी गुजरते हैं तो पानी चढ़ा के जाते हैं, इसलिए देखिए इतने सारे प्लास्टिक बॉटल्स हैं यहाँ पे। तो लोग पानी चढ़ा के आगे बढ़ते हैं। यहाँ का कुछ नियम है
शायद कोई क्या ड्राइवर है जो बिना पानी के लिए वो गुजर गए थे, तो उसी के लिए सारे लोग यहाँ पे पानी दान करके चले जाते हैं। और प्लास्टिक और कचरा भी फैला के चले जाते हैं। तो दान करो तो साथ में लेके भी जाओ ना। Yes. बॉटल्स है ना, थोड़ी चराने का बॉटल्स थोड़ी चराने के लिए कहाँ है, तुमको पानी चराने के लिए पानी चराओ, बॉटल अपने साथ ले लो। Yes. मतलब कुछ कर भी रहे हो, कुछ नहीं भी कर रहे हो, है ना। बिल्कुल। ऐसे करने का फायदा क्या है, तुम एक जगह पानी चरा रहे हो, दूसरी जगह नेचर का सत्यानाश कर रहे हो। अभी रिसाइकल थोड़ी होगा प्लास्टिक। लोग भी पता नहीं क्या सोचे, डर के मारे पानी तो चरा दिया। डर के मारे ही चराते हैं, दिल से थोड़ी चराते होंगे। अगर दिल से कोई चराएगा तो वो बॉटल साथ में लेके जाएगा। वो नेचर का भी सोचेगा, जो पानी जो चरा है, जिसके लिए चरा रहे है उसके लिए भी सोचेगा। वो डर के चरा के बॉटल फेंक के चले जाएगा। अजीब ही सोच है लोगों का। हम लोग हैं अभी नकीला 15,547 फीट पे। अरे बाप रे बाप। अभी ऐसे हो रहा है कि यहाँ से सीधा वो होना चाहिए तक ब्रिज। अब जाना है हमें नीचे। अभी तक तो रास्ता इतना एक्सट्रीम मिला नहीं है। ये सब तो चलता है इतना, तो ना ये तो नॉर्मल ही है ये तो। ये कोई जगह है, यहाँ सारे बाइकर्स वगैरह रुके हुए, हम लोग भी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत गंदा रोड है, धूल मिट्टी से भरा हुआ। पांग यहाँ से कह रहे 25 किलोमीटर और है, और रोड भी ऐसा ही है, धूल मिट्टी, ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन, कच्चा रोड बिल्कुल। ऊपर से जाऊँ या नीचे से जाऊँ? बहुत ही बदतर रोड है, धूल मिट्टी कच्चा रोड, धूल, बाप रे बाप। तो हम हैं अभी फिलहाल लाचुंगा में, जो है 16,616 फीट ऊपर। और ये है कुछ ऐसे नज़ारे लाचुंगा के पास। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए अभी हम निकलेंगे पांग के लिए। देखते हैं, अगर पांग में रुकना होगा तो पांग में रुक जाएंगे, अदरवाइज अगर रोड ठीक रहा तो ले तक। पांग के बाद भैया सही है क्या रोड? सही नहीं है ना, तो मतलब आज पांग में रुकने से ही रहेगा आई गेस। That's the only ideal thing I would say. Okay. Because it gets darker, it gets even colder. So, I mean, guys are in cars, it will be easier. But still, it's about the road. If it's I wouldn't call this a highway anymore. They're actually constructing a lot of it, so that's why it's like this. okay, okay. Literally मेरे कमर दुख रहे हैं ऐसे रास्ते पे चला के ना। और ऊपर से इग्निस का ना ये सस्पेंशन बहुत स्टीफर साइड पे है, तो इसलिए ऐसे बम्पी रोड्स को ज़्यादा सोक नहीं कर पाता। ये तो डेंजर है, नीचे बिल्कुल खाई। क्या रोड है। यहाँ पे रुके बिल्कुल स्ट्रीम के सामने। रोड का तो हालत मत पूछो भैया, कमर टूट गई है मेरी। मतलब बिल्कुल पथरीला रोड है, पूरे बहुत 2-3 किलोमीटर का पैच
तार रोड है, उसके बाद फिर वही पथरीले रोड। मेरी कमर टूट गई है बिल्कुल यार, बहुत खराब रोड है, बहुत ज़्यादा पथरीले रोड है। तो आज पांग ही स्टे करेंगे क्योंकि ले जाना सही नहीं रहेगा। इग्निस चुम्मा ब्लूबर्ड जो काम कर रही है ना, ये हेड्स ऑफ, तो नहीं अच्छे से परफॉर्म कर रही है ऐसे खराब रोडों पे भी। कहाँ नहीं गया, अरुणाचल, अभी लद्दाख। ऐसे नहीं कहता हल्को जुगारू, पता नहीं कहाँ से जुगाड़ कर ही लेते अपना खाना। मुझे लग रहा है अगर इसको मैंने छोड़ दिया यहाँ पे 2 हफ्ते के लिए, वो कर लेगा, अपना बंदोबस्त कर लेगा वो। पर मजे कर रहे हैं इन लोग। हम हैं जी अभी पांग में और भावना जा रही है स्टे के लिए ना, पूछने के लिए कि क्या है, कैसा है, रेट्स वगैरह। पांग भी लगभग 15,800 फीट ऊपर है पांग। एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ भी स्टेज वगैरह मिल जाते हैं। 3,200 में ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड है। हाँ नहीं गंदा तो नहीं करता। रूम तो देखा नहीं है सर। रूम हमने नहीं देखा रूम कैसा है। और फिर कुत्ते का भी कह रहा है कि कुत्ता भी रहेगा। हाँ कुत्ता तो रहेगा ही, वो गंदा नहीं करेगा क्या। अच्छा तब तो कोई फायदा नहीं। आगे देखते हैं, एक लड़का बोल रहा था आगे थोड़ा सस्ता वस्ता है, देख लेते। चलो 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 कुछ बेच रहे हैं 500 का रूम दे दो, 500 का रूम दे दो, ऐसे चिल्ला के जाना पड़ेगा। अब हर जगह 800 मांग रहे। पंगा ये है कि हम ढूंढ रहे सस्ता और मिल नहीं रहा हमें हर जगह। मतलब बेसिक, बिल्कुल बेसिक रूम 800 मांग रहे हैं लोग, मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक। वो तकरीबन 500 तक ठीक है, 500 मैक्स टू मैक्स 600, बट नहीं लोग 800 से नीचे आ ही नहीं रहे। राहुल भी ढूंढ रहा है, भावना भी ढूंढ रही है, अगर कुछ ऑप्शन मिल जाता है। नहीं तो फिर क्या करें, वही 800 में रहना पड़ेगा।